Good morning, students. Today we have to read about the next topic of this chapter, that is plastic. As you know, we use different object of plastic in our daily life. Actually, plastic is also a type of synthetic fiber, and it is prepared by using polymerization method, in which small units are combined chemically to form a big unit. The small units are called monomer, and the big unit which is obtained after combination of monomers is called polymer by the process of polymerization. So, if you see the definition of plastic, it is a synthetic material which can be molded or set into desired shape when soft. Means plastic is a synthetic material which can be easily molded or set into desired shape. मतलब ये इस तरह के सिंथेटिक मटेरियल हैं जिनको कि जब ये साफ हो तो हम किसी भी शेप में इनको सेट कर सकते हैं, एंड देन harden टू प्रोड्यूस अ ड्यूरेबल आर्टिकल। और इसके बाद जब ये हार्ड हो जाते हैं तो एक ड्यूरेबल आर्टिकल हमें मिलता है। सो इट इज अ प्लास्टिक। इट मीन्स it is a synthetic material which can be molded or set into desired shape when soft and then hardened to produce a durable articles. Example of plastic is polythene, PVC means polyvinyl chloride. It is the full form of polythene. Next is bakelite, and third and last is the melamine. So these are the few examples of plastic. If you see the structure of plastic, then there are two types of combination. First is linear combination and second is cross-link combination or cross-link arrangement. If you draw the figure of linear combination, then you will get this types of arrangement of. अब in linear arrangement the same types of units are combined. कहने का मतलब ये हुआ कि जब लीनियर अरेंजमेंट होगा प्लास्टिक के फॉर्मेशन में, तो जो केमिकल्स होंगे या इसके जो मोनोमर्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे, या फिर एक ही टाइप के कई मोनोमर्स मिल करके या फिर लीनियर अरेंजमेंट बना करके प्लास्टिक को बनाएंगे। जबकि जो नेक्स्ट टाइप का अरेंजमेंट है, सपोज दैट इट इज ए टाइप अरेंजमेंट एंड सेकेंड बी इज द क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। तो सेकेंड टाइप के अरेंजमेंट में आपको जो यूनिट्स होगी वो सेम टाइप की नहीं होगी, बल्कि क्या डिफरेंट टाइप की होगी। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए,
अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस-लिंक्ड अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में कि जो क्रॉस लिंक का अरेंजमेंट है, इसमें देख रहे हैं कि जो यूनिट्स हैं ये डिफरेंट होंगे और यहाँ पे जो फ्री साइड देख रहे हैं इस तरह से, इस पे कोई भी मोनोमर्स आकर के ऐड हो सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होते हैं क्रॉस लिंक टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। लीनियर में देखा कि इट इज अ सिंपल अरेंजमेंट, लेकिन क्रॉस लिंक अरेंजमेंट में आप देख रहे हैं कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स को बनाने की जो यूनिट्स है, ये क्रॉस लिंक अरेंजमेंट में जो अरेंजमेंट होता है ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाता है, जिसमें कि बहुत सारे आपके मोनोमर्स जुड़ करके अब एक बिग पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रॉस लिंक में देखें कि कॉम्प्लेक्स टाइप का है, लेकिन जो लीनियर अरेंजमेंट है वो क्या है, सिंपल टाइप का है। तो इट इज आर अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ monomers to form polymers, means polymers of plastic. You have seen two types of arrangement. First is linear arrangement and second is cross link arrangement. Now I will discuss about the types of plastics. Basically there are two types of plastic. First is thermoplastic and second is thermosetting plastic. So first I will discuss about the thermoplastics. Thermoplastic is a plastic which can be softened repeatedly by heating and can be molded into different shapes again and again, which called thermoplastic. It means ऐसे प्लास्टिक जिनको कि हीट करने के बाद जब हम सेट करते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो इसके शेप को बार बार हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्लास्टिक होंगे और कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड यू नो दैट व्हेन द पॉलीथीन इज हीटेड इट कैन बी easily molded or set into the desired shape again and again. And second example of thermoplastic is PVC, that is polyvinyl chloride. So these are the two examples of thermoplastic. First is polythene and second is PVC, means polyvinyl chloride. Now the second type of plastic is thermosetting plastic. A thermosetting plastic is a plastic which once set does not become soft. Means if the plastic is thermosetting types of plastic, तो एक बार अगर एक प्लास्टिक सेट हो गया या फिर माउंट हो गया तो ये फिर पुनः साफ या फिर अगेन साफ नहीं होगा ऑन हीटिंग। मतलब जब हम इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कोई भी डिजायरेबल ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको हीट करके या फिर मेल्ट करके फिर सेकेंड टाइम उसको मेल्ट करके फिर
ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं या फिर उसकी सेटिंग नहीं हो सकती है, मोल्डिंग नहीं होगी। तो दिस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एग्जांपल है दैट इज बैकेलाइट एंड मेलामाइन। मीन्स अ प्लास्टिक which once set does not become soft on heating and cannot be molded a second time is called thermosetting plastic। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं स्पेशली उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं जो हाईली हीट रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, जैसे आपका स्विच हो गया, इसी तरह से फ्राइंग पैन के हैंडल हो गए, फ्राइंग पैन हैंडल को बनाने में इसको यूज करते हैं। तो हियर यू हैव रीड अबाउट द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स and the example of thermosetting plastic is bakelite and melamine. So you know that plastics are two types. First is thermoplastic and second is thermosetting plastic. You can easily differentiate between the thermoplastic and thermosetting plastic on the basis of these two definitions. The next topic of this chapter, that is plastic as material of choice. Plastics as material of choice. It means what are the useful properties of plastic. You know that without plastic we cannot imagine our life. आपके लाइफ का एक सिंगल एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कि हम प्लास्टिक को यूज नहीं करते हैं। एंड यू नो इट इज हार्मफुल फॉर अस, बट वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। जैसे सपोज डैट हमें एक पेन भी चाहिए तो वो भी प्लास्टिक की ही बनी है। मेडिसिन्स के जो पैकेट हैं वो भी प्लास्टिक्स के ही बने हुए हैं। प्लास्टिक्स के आपके फैन हैं, स्विचेज हैं, मतलब आप जितनी भी चीज़ें अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो आपको प्लास्टिक के मटेरियल मैक्सिमम मिलेंगे। और मैक्सिमम मटेरियल या फिर मैक्सिमम ऑब्जेक्ट मिलने का रीज़न है कि प्लास्टिक हैड सम यूजफुल प्रॉपर्टी। जैसे द फर्स्ट प्रॉपर्टी of plastic, that is plastic is chemically unreactive. First is plastic is chemically unreactive। अब अनरिएक्टिव कहने का मतलब कि प्लास्टिक किसी भी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जैसे अगर सपोज डैट आप कोई भी आयरन का मटेरियल यूज कर रहे हैं अपने घर पे, तो अब उसमें रस्टिंग होने के चांसेस होते हैं। जैसे ही सीजन में चेंजेज होंगे, रेनी सीजन आएगा तो रस्टिंग होने लगेगी, बार बार आपको पेंटिंग करनी पड़ेगी, ऑयलिंग करनी पड़ेगी या फिर गैल्वेनाइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लास्टिक के मटेरियल हैं
तो ये इनका इन्वायरमेंट का कोई इन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव। तो अनरिएक्टिव है इसलिए इनको हम ज़्यादा यूजेज में लाते हैं। जैसे आप ट्रांसपोर्ट के बॉडी भी देखिए, उससे भी प्लास्टिक से ही बनाए जा रहे हैं। आपके घर में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो प्लास्टिक से डिजाइन किए जा रहे हैं। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स are prepared from the plastics. The second, plastics are poor conductor of heat and electricity. Plastics are poor conductor of heat and electricity. Due to this reason, plastics are poor conductors of heat and electricity. इसके चलते या फिर इस स्पेशल प्रॉपर्टी के चलते या फिर प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर ही नहीं बल्कि इंसुलेटर कहिए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे वायर हो गया, आपका फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गए, सबको बनाने में यूज किए जाते हैं। क्योंकि एक तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी इनकी होती है कि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। थर्ड प्रॉपर्टी जो होगी, प्लास्टिक can be into different अब प्लास्टिक को किसी भी शेप में या फिर डिफरेंट शेप में हम माउंट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो इसके वजह से हमें जो हाउस होल्ड सर्विस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बनाने में इजी होता है। जैसे आप चेयर देख रहे हैं, टेबल देख लीजिए, डोर भी प्लास्टिक के आ रहे हैं इस समय। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। तो इसकी इस प्रॉपर्टी के चलते, क्योंकि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, मतलब इजली इसको हम मोल्ड कर सकते हैं। जो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है कि प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। अब इस प्रॉपर्टी के चलते हम प्लास्टिक को और ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि एक लाइट वेटेड है, सेकेंड स्ट्रांग है और ड्यूरेबल है। जैसे अगर आप वुडन चेयर को घर पे बनाते हैं फर्नीचर के लिए, तो अब उसको रखने में भी आपको प्रॉब्लम है। एक तो हैवी वेटेड है, उसको लिफ्ट करने में भी प्रॉब्लम है। सेकेंड स्ट्रांग नहीं होगा। स्ट्रांग न होने का मतलब कि वो एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, उस पर कभी न कभी मोथ या फिर टर्माइट का इन्फेक्शन होगा या टर्माइट उसको अटैक करके खराब कर देगा। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। 10 चेयर आप प्लास्टिक का एक ही में अरेंज करके सेट करके रख सकते हैं, लेकिन 10 वुडन चेयर को रख पाना डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह से प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी है कि लाइट वेटेड है, स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, इसके चलते भी हम ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि प्लास्टिक्स आर क्वाइट चीप एंड इजी मेड। जो लास्ट प्रॉपर्टी है विच इज अ कमर्शियल वैल्यू ऑफ प्लास्टिक की, ये बहुत ही आपको चीप प्राइस या फिर सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं, इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली प्लास्टिक्स आर हार्मफुल फॉर अस, बट वी कैन नॉट इमेजिन और लाइफ विदाउट प्लास्टिक। क्योंकि आप इन प्रॉपर्टी को देख लीजिए और इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद
आप थिंक करके सोचेंगे तो देखेंगे कि आपके लाइफ के बहुत कम ऐसे एस्पेक्ट हैं जहाँ पे हम प्लास्टिक का यूज नहीं करते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अभी आपने देखा कि प्लास्टिक के इतने यूजेज हैं कि हम अपने लाइफ में विदाउट प्लास्टिक हम अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इन्वायरमेंट का कहीं न कहीं केयर करना है। अगर हम केयर नहीं कर पाए तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो इस इन्वायरमेंट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का मतलब कि दोज मटेरियल्स विच कैन easily recycled in nature are called biodegradable material। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड, जैसे वुड से आपने कोई फर्नीचर बनाया है और जब फर्नीचर खराब हो जाएगा तो आप उसको जैसे ही फेंकेंगे तो वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, वो रिसाइकिल हो करके फिर ह्यूमस में या फिर अर्थ में उसी तरह से चला जाएगा और अर्थ पे किसी तरह का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। इसी तरह से जैसे आपका पील ऑफ वेजिटेबल है, जो घरों में हम सब्जी काटते हैं छिलते हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। पेपर है वो भी आपका प्लांट प्रोडक्ट है, वो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। पेपर हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गए, कॉटन फैब्रिक हो गए, एक्सेट्रा। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहने का मतलब कि ऐसे मटेरियल जो कि रिसाइकिल्ड हो जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का मतलब दोज मटेरियल विच कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड बाय द नेचर। जैसे इसमें आ जाएगा आपका प्लास्टिक। अब प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मतलब इसको डिस्ट्रॉय होने में आपको 10,000 ईयर से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अब 10,000 ईयर से ज़्यादा टाइम लगेगा तो ऐसे मटेरियल को जब यूज करेंगे, और जब इतनी पॉपुलेशन है तो ऑब्जेक्ट का यूज होना आपका स्वाभाविक है। तो जब इस तरह की चीज़ों को आप यूज कर देंगे प्लास्टिक से बने मटेरियल को, तो लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, या फिर लाइफ को, जहां आपने देखा कि विदाउट प्लास्टिक वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ, तो प्लास्टिक के चलते भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दोनों चीज़ें हैं। तो जब भी हमें प्लास्टिक को यूज करना है तो बहुत ही केयर के साथ, जैसे केयर में जब भी आप मार्केट जाएं तो अपना कैरी बैग लेकर के जाएं, चाहे वो फैब्रिक का हो या फिर जैसा भी। कोशिश करें कि मार्केट से कभी भी प्लास्टिक घर पे न ले आए। सेकेंड, प्लास्टिक्स में भी कई कैटेगरी है। जैसे अगर आप रफ क्वालिटी या फिर चीपर प्लास्टिक यूज करते हैं, जैसे ईटेबल प्रोडक्ट आपने ला दिया, तो जो पॉलीमर्स हैं या फिर जो उसके केमिकल्स हैं वो आपके फूड आइटम में ऐड होने लगते हैं। जैसे अगर आज के जो बाहर के एनिमल्स हैं, जैसे काऊ वगैरह जो कि आपके गलियों में या फिर इस तरह से घूम रहे हैं रोड साइड पे, देखिए वो कितना प्लास्टिक खा लेते हैं। तो ये भी केयर करना है कि अपने तो बचना है, लेकिन अदर एनिमल्स को भी आप बचाना है। मतलब जो भी फूड आइटम आपका बच गया है तो उसको प्लास्टिक में न फेंक करके बल्कि एक तरह से डिस्पोज करिए, ताकि कोई भी अदर एनिमल्स जैसे डॉग हो गया, फैलो हो गया, गोट हो गया या फिर काऊ हो गई, उसको ईट करे तो उसे कोई प्रॉब्लम न हो। थर्ड चीज, प्लास्टिक का जितना कम से कम हो सके यूज करें। अब जो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के यूज में, जैसे अगर आप एक ही प्लास्टिक को बार बार रिसाइकिल कर रहे हैं तो ये भी ठीक है कि हम न्यू प्लास्टिक को जनरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या उसको रिसाइकिल कर रहे हैं।
तो रिसाइकलिंग में 4R का कॉन्सेप्ट होता है। 4R का मतलब ये है कि कैसे हम प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो 4R का कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट R मीन्स हो जाएगा आपका रिड्यूस, सेकेंड R फॉर रीयूज, एंड थर्ड R फॉर recycle, and last means fourth are recover। मतलब how we can reduce the use of plastic, so you should follow 4R concept। फर्स्ट में आपको क्या करना है कि एनी हाउ यू शुड रिड्यूस द यूजेज ऑफ प्लास्टिक, चाहे जैसे हो भी तो आप प्लास्टिक के यूजेज को कम करिए। सेकेंड रीयूज करिए। अब ये नहीं कि एक कैरी बैग है, अगर आपने प्लास्टिक का ले लिया तो जब तक खराब ना हो जाए तब तक आपको यूज करना है, तो ये हो जाएगा आपका रीयूज। इसके बाद रिसाइकलिंग। अभी जो मान लीजिए यूज किए तो उसकी रिसाइकलिंग भी होनी चाहिए। तो अब ऐसे जगह पे ना आप इसको थ्रो कर दे, किसी भी लैंडफिल एरियाज में इसको फेंकिए जहाँ पे इसकी रिसाइकलिंग हो सके, और इसके बाद फिर रिकवर। मतलब जैसे भी हो आपको प्लास्टिक के यूज को कम करना है, तब जाकर के एनवायरनमेंट बच पाएगा। अदरवाइज अगर कोई रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर का ही कॉन्सेप्ट अगर कंसीडर कर रहे हैं तो रिसाइकलिंग करेंगे कैसे? नेचर की रिसाइकलिंग में 1000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप रिसाइकलिंग करेंगे तो उसको बर्न करेंगे तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और डिफरेंट टाइप के पॉइजनस गैस, इवन सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होने लगती है। और जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में आएंगी तो एसिड रेन जनरेट करना स्टार्ट करती हैं, और एसिड रेन जिस दिन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग भी सफ़र करेंगे। इवन प्लांट जैसे ही डिस्टर्ब होंगे तो प्लांट डिस्टर्ब हो गए, जैसे सीरियल्स प्लांट, आपको सीरियल्स भी हम लोगों ने बताया, पढ़ाए थे हमने। तो अगर सीरियल्स प्रोडक्शन आपका जब लेस होगा तो डेफिनेटली अब यहाँ पे सीवियर कंडीशन हो जाएगी या फूड की स्कैरसिटी हो जाएगी। इन्वायरमेंट जब पोल्यूटेड हो जाएगा तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जैसे आप कोविड में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के चलते, न होने के चलते बहुत लोगों की डेथ हुई है इस बार, सेकेंड वेव। तो दो चीज़ें आपने देख लिया। थर्ड, जिस अर्थ पे इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो भी क्या होगी, खराब होने लगेगी। जैसे अगर जहाँ पे आप इसकी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो ये सॉइल को क्या करते हैं, बैरल बना देते हैं। जैसे अगर ये अर्थ का सरफेस है और आपने यहाँ पे लैंडफिल पे ले आकर के प्लास्टिक को फेंक दिया, अब प्लास्टिक को तो आपने फेंक दिया, धीरे धीरे इसका डिसइंटीग्रेशन होगा। जैसे कभी रेन होगी, कभी फ्लडिंग हो जाएगी, तो ये क्या होगा कि अर्थ के अब नीचे की ओर ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ मूव करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आकर के फिक्स हो गया। आपने सपोज इसकी रिसाइकलिंग में यहाँ पे लैंडफिल पे आपने सॉइल डाल दी, तो होगा ये कि जो रेन वाटर आएगा वो सीपेज नहीं हो पाएगा, और सीपेज नहीं हो पाएगा तो फिर ग्राउंड वाटर लेवल भी आपका डिस्टर्ब होगा। तो डिस्टर्ब होने के चलते क्या होगा कि जब वाटर सीपेज नहीं होगा तो वाटर फिर इवापोरेट होकर के चला जाएगा, और आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वाटर जो सीपेज नहीं हो रहा है सॉइल में, तो वाटर जा कहाँ रहा है, कि रेन से आया और फिर चला गया इवापोरेट होकर के। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर भी आपका रिचार्ज नहीं हो पाएगा। मतलब एयर, वाटर और सॉइल, ऑल टाइप्स के पोल्यूशन के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा झेलने के लिए। तो जितना भी हो सके कम से कम हम प्लास्टिक का यूज करें। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। थैंक यू।